Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area. And today's part is part 11. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 10, I have shared the link at the end of the video, or you can go to the playlist and check and see those parts first and then you watch this part. So what will happen, the concept will be much more clear and it will be helpful for you, or it will be easier for you to do these sums. Okay. Now today we are going to understand one new concept, that is circle. Now first of all we must know that how we can draw a circle. For drawing one circle we need a fixed point. So this is the fixed point, and for the circle the fixed point name is O. Okay. So now O is the center of the circle. Okay. And then we will draw the circle in this way. Clear now? Okay, now the center is, it will be here. Okay, so this is a circle. So circle has a center and the name of that center is what? O. Now you have to understand, when I drew this one, we need one fixed point and one line segment, and this line segment, like from here to here, or 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 from here to here, like this way, like a wheel. Understanding or no? So from here to here, this is known as the radius. So radius is same. Understanding or no? So radius is same. So if I give a name OA, so OA is the radius. So I can write OA is equal to what? Radius, or radius equal to OA. Same way, I can make here B point. So OB is also the radius. So OB. Clear? Now if you see OA and OB, if you take it together, this one. Okay. So what you are doing? You are taking OA plus OB. So it is becoming what? AB. AB. So AB is what? AB is equal to diameter. Okay. AB is equal to diameter. So AB becomes the diameter, and diameter means how many radius you took. See, OA, OB, OA is also R and OB is also R, R plus R, 2R. Okay? So diameter. Now in diameter, when we are talking about diameter we say in short D. Okay? So here different formulas comes. So first formula, number 1, diameter D equal to what? 2R unit. So diameter is 2R, and if I want to find out radius R, then it will be diameter divided by 2 unit. Clear? So diameter का फॉर्मूला भी मिल गया है 2R, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है? D by 2 unit. Now D by 2 unit. Okay, D by 2. So D कितना है? 2R. So 2R divided by 2, 2 cancels. So again R is coming. So this is the way how to find out the radius and how to find out the diameter. Now see the border. Suppose this is the border, the outline. Okay, this is the outline. This outline is known as what? This outline is known as circumference. ये आउटलाइन को बोलते हैं, एक तो नाम है, उसका नाम है क्या? सर्कमफरेंस. नहीं तो हम लोग बोलेंगे, जैसा कि रेक्टेंगल, स्क्वायर हम लोग ने सीखा है, पेरीमीटर, हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, मगर ज्यादातर हम लोग जब सर्कल करते हैं तब सर्कमफरेंस ही बोलते हैं, और सर्कमफरेंस और पेरीमीटर सेम ही है. ठीक है? तो यहां से सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस. तो सर्कमफरेंस का शॉर्ट क्या है? C. ठीक है? सर्कमफरेंस. तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? ये सर्कमफरेंस अगर हमको निकालना है, अगर हमको बॉर्डर निकालना है, ये वाला बॉर्डर अगर हमको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है?
2 पाई आर यूनिट, ठीक है, 2 पाई आर यूनिट। सो थर्ड फॉर्मूला क्या है? सरकमफरेंस। सो सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है। अभी अगर मेरे पास ये सपोज सर्कुलर शेप का लैंड है और इधर में एक तो मैं घर बनाऊंगा, तो घर कहां बनाऊंगा? मैं तो बॉर्डर में नहीं बनाऊंगा, मैं तो अंदर में बनाऊंगा। तो अंदर में बनाना मतलब एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया है कैसे सरकमफरेंस निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे एरिया निकालना है, एरिया के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है। और एक तो चीज, फिफ्थ वन, ये जो मैंने इधर में लिखा है सरकमफरेंस एरिया, इधर में मैंने एक तो चीज यूज किया है, वो है ये पाई। ये क्या है? पाई, ठीक है। व्हाट इज दिस? पाई, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। ओके, पाई का वैल्यू है 22/7। ये फ्रैक्शन में है, और नहीं तो हम लोग डेसिमल में करने से 3.14, ठीक है। तो 3.14 कैसे आ रहा है? देखो 22, 7 3 जा 21, तो 1 डेसिमल पॉइंट 0, 7 1 जा 7, सो आ गया 3, फिर 0, 7 4 जा 28, सो 3.14 नहीं तो 22/7। जब पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, तुमको हमेशा 22/7 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मगर अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको बोल दिया कि टेक पाई एज 3.14, तब तुमको 3.14 ही लेना पड़ेगा। तब तुम क्या करोगे? 22/7 नहीं ले सकते, ठीक है। ले सकते हो मगर आंसर तुम्हारा नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन में बोल देगा कि यूज पाई और टेक पाई 3.14, so that time you have to take 3.14, and if nothing is told, always you try to take 22/7। तो मेरा ख्याल से सर्कल का जो स्टार्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो तुम लोग को मालूम हो गया हो। तो मैं फिर से और एक बार ड्रॉ करता हूं एक तो सर्कल। तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये है रेडियस, ये भी है रेडियस। तो दोनों रेडियस मिलाकर क्या हो जाएगा? दोनों रेडियस मिलाकर हो जाएगा डायमीटर। ये वाला क्या है? ये वाला है सरकमफरेंस, ठीक है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। और अंदर में क्या है? अंदर में है एरिया, ठीक है। तो तुमको सरकमफरेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, रेडियस कैसे निकालेंगे जब डायमीटर दिया हुआ रहेगा वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और जब रेडियस दिया हुआ है तो डायमीटर कैसे निकालना है वो फॉर्मूला भी तुमको मालूम होना चाहिए। तो ये 4 ठो जो फॉर्मूला है दे आर वेरी वेरी important. Now we are ready to solve exercise 15.3, and what is the first question? Find the circumference of the circle whose radius is, okay, radius दिया हुआ है, तुमको क्या निकालना है ना? circumference। so इधर में 4 ठो क्वेश्चन है, A B C D, एक एक करके करते हैं। और ये है फॉर्मूला, तुम लोगों के लिए हाईलाइट के लिए ये मैंने रब नहीं किया है, ठीक है, ये रखा है। तो इधर में क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, मतलब r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तुम एक तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ऐसा करके, ठीक है। और ये सेंटर है O, और इधर में ये है हो गया रेडियस, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो r दिया हुआ है, और सर्कल में r रहने से तुम फटाफट तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सरकमफरेंस, वेरी इजी, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आर यूनिट, ये है फॉर्मूला। सो 2 इंटू 22/7, और r कितना है? 14, और ये हो गया सेंटीमीटर यूनिट। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या है? 2 इंटू 22 इंटू 2 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर, और ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी ये सम करेंगे तो इसके लिए भी
एक तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं और ये सेंटर O दे दिया और रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आंसर और लिखेंगे R इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। देयरफॉर circumference of the circle equal to 2 pi r unit। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7, r मतलब 35 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। काटेंगे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो क्या पड़ा है 2 इंटू 22 इंटू 5 सेंटीमीटर। अभी देखो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 22 तो 220 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। तो इधर में r लिखेंगे, r इक्वल टू 3.5 मीटर। चलो एक तो सर्कल ड्रॉ करते हैं छोटा सा और इधर में सेंटर O और r लिख देंगे कितना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी लिखेंगे देयरफॉर circumference of the circle equal to 2 pi r unit। So 2 into 22/7 into 3.5 और यूनिट क्या है मीटर है तो मीटर लिखेंगे। अभी देखो इसको काटेंगे 7 1 जा 7, 35 है। ठीक है, पॉइंट को अगर अवॉइड करेंगे तो 35, अगर पॉइंट लेंगे तो 3.5। तो इसको कैसे 3 से जाएगा नहीं जाएगा तो 0 पुट करेंगे, उसके बाद पॉइंट है पॉइंट आ जाएगा तो बन गया क्या 35। सो 7 5 जा 35, सो क्या आ गया 0.5। तो इसको काटकर 0.5 लिखेंगे। सो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 मीटर। अभी 2 इंटू 0.5, ओके, मतलब 0.5 मतलब 50 पैसा। सो 2 इंटू 0.5 मतलब 1 हो गया और 1 इंटू 22 मीटर। मैंने डायरेक्टली किया है, तुम चाहो तो रफ कर सकते हो। कैसे करके 0.5 इंटू 2, देखो 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 0 जा 0 और 1 1 एंड देन द डेसिमल पॉइंट विल बी फ्रॉम हियर। सो 1.0, तो 1.0 का मतलब ही क्या है 1 है, तो 1 इंटू 22 कितना आ जाएगा 22 ही आ जाएगा, इसलिए 22 मीटर लिख दिया। ठीक है, अभी नंबर डी रेडियस 6 मीटर। ठीक है, रेडियस दिया है 6 मीटर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इधर में सेंटर O R इक्वल टू 6 मीटर। तो देयरफॉर circumference of the circle तो क्या होगा 2 pi r यूनिट। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 6 और मीटर आ गया। तो अभी 7 से नहीं काटेगा, जब नहीं काटेगा तो नीचे में 7 ऐसे लिख देंगे और ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 22 44 इंटू 6, चलो 44 इंटू 6। जब नहीं काटेगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24, 25 26, 264 मीटर। अभी इसको डिवाइड करने से ही आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, इधर में 264 7 से करेंगे। ठीक है, 7 3 जा 21, तो कितना है 5 4, ओके 54 आ गया। तो 7 7 जा 49। ठीक है, अभी कितना आ गया ये तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो बोरो करोगे इसको 4, ये हो जाएगा 14 14 माइनस 9 5, 4 माइनस 4 0, तो 5 आ गया। अभी उसके बाद कुछ भी नंबर नहीं है तो पॉइंट देंगे और 0। अभी 7 7 जा 49, बस 37.7। और भी कर सकते हैं मगर इधर में ही हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर 37.7 मीटर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज। मतलब डायमीटर तुमको निकालना है, डायमीटर मतलब d और d का मतलब 2r तुमको निकालना है। हुज सर्कमफरेंस इज, सो सर्कमफरेंस दिया हुआ है। तो ये मैं कैसे करूंगा, सर्कमफरेंस। ठीक है, तो सर्कमफरेंस कितना है 132 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ये लिखने से और अच्छा है। ठीक है,
सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। नाउ सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। तो अभी गौर से देखो, इधर से मैं आर निकाल सकता हूं मगर मैं आर नहीं निकालूंगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, अल्टीमेटली डायमीटर, और डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2r। तो 2 देखो 2 है, r है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2r लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद पाई है, तो पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 22/7, ठीक है, इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अभी देखो 2r इक्वल टू 132 और 7 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 7, और 22 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, काटेंगे इसको, 11 2 जा 22, इधर में काटेंगे 11 1 जा 11, फिर 2 लेफ्ट 22, 11 2 जा 22। अभी इसको फिर से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो 2r इक्वल टू 6 इंटू 7 42 सेंटीमीटर, और 2r मतलब क्या है, d इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक है। अभी देखो ये जो सम मैंने किया है इसमें फिर भी थोड़ा सा कमी है। वो कमी क्या है, इधर में तुमने 2r लिखा है, ठीक है, तो इधर में तुमने d लिखा है। तुम ऐसा कर सकते हो स्टार्टिंग में ही, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, से तुम रेडियस ले रहे हो आर। therefore diameter, okay, that means d diameter is equal to 2r, ठीक है। ये लिख देने से और अच्छा है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे फिर भी ये लिखोगे चलेगा, ठीक है। ये लिखने से और अच्छा है मेरा ख्याल से। अभी अगर हम लोग सेकेंड सम करेंगे, ठीक है, तो सम नंबर a 2a, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो सेकेंड सम जब करेंगे, लेट द रेडियस, तुम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, लेट द रेडियस बी आर, से तो आर ले लिया। देयरफॉर डायमीटर क्या होगा, 2r, डायमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, d इक्वल टू 2r, ठीक है। उसके बाद तुम ऐसा कर सकते हो, बाय द प्रॉब्लम, ओके, बाय द प्रॉब्लम। इधर में क्या दिया है, 11 सेंटीमीटर, सो सर्कमफरेंस दे दिया है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अभी देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू r, ऐसे ही लिखोगे तो 11 सेंटीमीटर। अभी 2r ही रख दो इधर में, ठीक है, तो 7 चला जाएगा, 11 इंटू 7, और 22 नीचे आ जाएगा, 22 आ गया नीचे सेंटीमीटर। सो 2r का मतलब क्या है, d, और इधर में काटेंगे 11 1 जा 11 2 जा, तो आ गया 7/2 सेंटीमीटर, और 7/2 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2c। तो 66 सेंटीमीटर ये है सर्कमफरेंस। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं सर वो सब बहुत हार्ड हो जा रहा है, तो सिंपली करो आंसर। तो सर्कमफरेंस दिया है, देखो, और शॉर्टकट में सर्कमफरेंस कितना है, 66 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है, r ही है, तो 66 सेंटीमीटर। उसके बाद 2r रख देंगे, 66 और 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। अभी 2r इक्वल टू, नाउ 11 से काटेंगे, 22 से भी काट सकते हैं, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। और क्या बचा है, 3 इंटू 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 2r मतलब डायमीटर, सो ये हो गया 21 सेंटीमीटर, आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वन, सर्कमफरेंस मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक है। तुम मेरा रिक्वेस्ट है
कि अगर तुम वैसा करके लिखोगे लेट द रेडियस बी, वो और अच्छा होगा, ठीक है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल तो क्या है 74 सेंटीमीटर। तो उसके बाद 2 पाई आर इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। उसके बाद 2r इक्वल टू 74 इंटू 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 और r को मैं इधर ही रखा हूँ, ठीक है, हो गया। अभी 2r को मैं लिख सकता हूँ d, ठीक है। अभी इसको काटेंगे, सो किससे काटेगा ना 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा 22, और इसको भी काटेंगे, 2 3 जा 6 1 एक्स्ट्रा, सो 7, तो हो गया 14, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया 37 इंटू 7/11 सेंटीमीटर। अभी हम लोग नहीं काट सकते तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 37 इंटू 7, चलो इधर में करते हैं, 37 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 7 3 जा 21 25, सो क्या आ गया 259/11 सेंटीमीटर। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इधर में डिवाइड करते हैं, 259 11 से, 11 2 जा 22, 3 लेफ्ट, फिर 9 आ जाएगा, 11 3 जा 33, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी इधर में डेसिमल पॉइंट देंगे तो 0 आ गया। अभी 11 5 जा 55, ठीक है, 5 आ गया। तुम चाहो तो ये भी आंसर कर सकते हो 23.5, मगर अगर बुक का आंसर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इधर में और एक तो 0 पुट करोगे, तो 11 4 जा 44, तो ये 6 हो गया, तो आ गया बुक का आंसर 0.54 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 and 2 you have understood nicely. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. Now we will come to question number 3. So let us see what they are telling in question number 3. A wire is in the shape of a square. तो एक तो वायर है, सपोज आंसर कर लेंगे, तो ये क्या है, एक तो वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक तो वायर, ठीक है। और वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, तो ये वायर तुमने बेंड करके क्या शेप में बना दिया है, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर शेप में, स्क्वायर का मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके, विथ ईच साइड इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। सो हर एक साइड क्या है, 15.5 सेंटीमीटर, ये भी 15.5, इज बेंड इनटू द शेप ऑफ ए सर्किल। उसके बाद तुम इसको क्या कर रहे हो, ये वायर को तुम बेंड कर रहे हो, ठीक है। फिर ये वायर को सीधा करके तुमने क्या बना दिया है, एक तो सर्कल, ठीक है। तुमने ये स्क्वायर था, उसके बाद इसको तुमने सर्कल बना दिया, ठीक है। सो फाइंड द सर्कमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तुमको ये सर्कल का क्या है, सर्कमफरेंस निकालना है और डायमीटर निकालना है। तो यही वायर, ठीक है, बन जा रहा है, वायर जो है वही हो जा रहा है क्या ना, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। और उसी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जब सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या बन जा रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो व्हाट आई विल राइट हियर आई कैन राइट दैट साइड, और आई विल राइट ईच साइड ऑफ स्क्वायर, हर एक साइड, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, से रेडियस को
पकड़ ले रहे हैं r। क्यों? बाद में हमको डायमीटर निकालना है, तो इसलिए अभी से मैंने रेडियस r ले लिया। ठीक है, नाउ ओके, आई हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफरेंस। सो सर्कमफरेंस एकदम डायरेक्टली करेंगे। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका जो पेरीमीटर है वही बन जाएगा सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है, तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना है? 15.5 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करने से सर्कमफरेंस आ जाएगा। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 15.5 इंटू 4। ठीक है, 4 5 20, 2 कैरी, 4 5 20, 22, 2 कैरी, 4 1 4 5 6। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1। ओके, तो आ गया 62.0, तो मैं लिखूंगा क्या? 62 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हम लोग का फर्स्ट आंसर। ठीक है, अभी उसके बाद हमको डायमीटर निकालना है। अगेन सर्कमफरेंस कितना आया? 62 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r, 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 62 सेंटीमीटर। सो 2 और r को रख देंगे इधर में, 62 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे, और हो गया इधर में सेंटीमीटर। अभी क्या करेंगे? 2r इक्वल टू, इसको काटेंगे। सो 2 1 2 1 दैट मीन्स 11 2 3 6, 2 1 2, तो क्या आ गया? 31 इंटू 7/11 सेंटीमीटर। सो इसको लिखेंगे d, डायमीटर मतलब d, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 7, 7 3 21, और डिवाइडेड बाय 11 सेंटीमीटर। अभी इसको डिवाइड करने से ही आंसर आ जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड के लिए चलो, मैं ये पार्ट को अभी और नहीं चाहिए, तुम लोग को फॉर्मूला मेरा ख्याल से सबको हजम हो गया है फॉर्मूला। तो चलो अभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे, सो लिखेंगे 217 और बाहर में 11 लिखेंगे। सो 2 से नहीं जाएगा, फिर 21, तो इससे जाएगा क्लोजर, 11 1 11, तो 0 आ गया और यहां से 1 आ गया। अभी 7 नीचे आ जाएगा, 107, तो 11 हाउ मच? 11 9 99। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा, बोरो करेंगे 0, ये हो गया 10, 10 को काटेंगे 9, और ये हो गया 17, 17 माइनस 9 इज हाउ मच? 8, और 9 माइनस 9 0। अभी हो गया, अभी कुछ भी नहीं है तो डेसिमल पॉइंट लेंगे और इधर में एक तो 0 लेंगे। ठीक है, और अभी इसको करेंगे 11 और 80 है, 11 7 77। ठीक है, और उसके बाद कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ही आंसर लिख देंगे, d इक्वल टू 19.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 1 and 2, but you have to practice these sums again and again, okay, so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly, okay. But another but is there. What now you are thinking, sir, in the book this answer is not there, okay, there is something else is there, so what to do? We will take this answer or the book answer if our teacher cuts marks. Okay, for that also one solution is there. In the book the answer which is given, that is done
or that answer is coming by taking the value of pi as 3.14, not 22/7. ठीक है, तो अगर हम लोग 3.14 लेंगे वैल्यू पाई का, तब जाके जो बुक में आंसर है वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो पार्ट कैसे बुक का आंसर, बुक में 19.7 फिर 2 डिजिट है, वो कैसे आ रहा है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 लिया है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सिखा दूंगा। ठीक है, तो जो भी हो, बुक का आंसर और ये आंसर ऑलमोस्ट दे आर सेम। You can write this answer and I think the teacher will not cut any marks, okay, because they have not particularly mentioned that you have to take the value of pi as 3.14. But still then, if you want to write that book answer only, so in the next part only I will tell you how we have taken 3.14 and how that book answer is coming. Clear? सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।